Hello everyone, today we learn our second chapter, what is democracy and why democracy. In this chapter, we already learned definition of democracy, what is democracy, and simple definition of democracy, major decision by elected leaders, features of democracy, free and fair electoral competition, one person, one vote and one value. Now, it's a time to learn rule of law and respect for rights. We learned this topic through a simple story of Zimbabwe. Zimbabwe is a country in Africa. Is a country in Africa. So we learn the story of Zimbabwe to understand rule of law and respect for rights. Class हमने पहले ही वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू कर लिया था. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स अब हमें करना है और हम इसे जिम्बाब्वे की स्टोरी से समझेंगे. पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश बताऊंगा और उसके बाद इसकी हिंदी को मैं ट्रांसलेट करूंगा और समझाऊंगा. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that had led the freedom struggle. Its leader, Robert Mugabe, ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. Over the year, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protests and demonstration against the government was declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. There were independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judge. He was forced out of office in 2017. जिम्बाब्वे को 1968 में इंडिपेंडेंस मिली थी वाइट लोगों से. उसके बाद देश पर जानू पीएफ पार्टी का राज था जिसने देश की इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके जो लीडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे, जो लगातार आज़ादी के बाद से शासन कर रहे थे. इलेक्शन रेगुलरली होते थे, नियमित रूप से हो रहे थे इलेक्शन, लगातार हो रहे थे इलेक्शन, हर 5-6 साल बाद इलेक्शन हो रहे थे. और लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जीतती थी, वो थी रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी ZANU-PF. रॉबर्ट मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन वो गलत तरीके अपनाते थे चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए. आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे और उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली और अपनी जवाबदेही को भी कम कर लिया. वे जो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर होते थे उनको भी परेशान किया जाता था और उनकी जो रैलीज होती थी उनके अंदर गड़बड़ कराई जाती थी, कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा कराई जाती थी रूलिंग पार्टी के द्वारा. रूलिंग पार्टी कौन थी? ZANU-PF के द्वारा. और सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता था और जो भी प्रदर्शन करता था वो गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था. और कोई भी राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकता था. टेलीविज़न और रेडियो पर भी सरकार का नियंत्रण था और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ZANU-PF का अधिकार था वो और रेडियो पर. न्यूज़पेपर जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, पर लेकिन वो सरकार, अगर वो भी सरकार की आलोचना करते तो फिर उन्हें परेशान किया जाता, ऐसे अखबारों को बंद करा दिया जाता. सरकार ने यानी कि राष्ट्रपति की पार्टी ने अदालती फैसलों की परवाह भी नहीं की, जज के फैसलों की परवाह भी नहीं की और उनके ऊपर दबाव डाला जजों के ऊपर. और इसके बाद 2017 में राष्ट्रपति को यानी कि मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया. The example of Zimbabwe shows the popular approval of ruler is necessary in
a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. Popular leaders can be autocratic. If wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activities, including political opposition, in the period before elections. This requires that the state should respect some basic rights of the citizens. They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of laws. These rights must be protected by the independent judiciary, whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 6. जिम्बाब्वे का ये एग्जाम्पल में बताता है कि रूलर्स को बार बार जनादेश मिलना, बार बार इलेक्ट होना रूलर्स का लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो लोकप्रिय नेता होते हैं, जो लीडर्स पॉपुलर होते हैं, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, वो तानाशाह बन सकते हैं, वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो लोकप्रिय हो चुके हैं, तो अब वो बड़े बड़े फैसले करते हैं, लोग उनकी बातें मानने लगते हैं। इतने लोकप्रिय हो जाते हैं तो लोग उनकी बातें मानने लगते हैं, तो वो सोचते हैं अपने आप को तानाशाह बना लेते हैं वो अपने आप को। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि लोकप्रिय लीडर्स यानी कि पॉपुलर लीडर्स डेमोक्रेटिक हों। अगर हमें लोकतंत्र को देखना है, यानी कि हमें डेमोक्रेसी को देखना है, तो हमें इलेक्शन पर फोकस करना ज़रूरी है, और हमें उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के बाद और बाद की परिस्थितियों को भी देखा जाए। चुनाव के पहले जो सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह को राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की और सही रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, है ना, एसोसिएशन बनाने की, प्रोटेस्ट करने की, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को करने की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। एक्चुअली कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, सब लोग इक्वल हैं, और इन सभी जो राइट्स हमें मिलते हैं, इन सभी राइट्स की जो सिक्योरिटी है वो किसके पास होती है? वो होती है न्यायपालिका के पास, यानी कि हमारे जुडिशरी के पास। लेकिन जिम्बाब्वे में तो ये भी नहीं होता था। जिम्बाब्वे में जुडिशरी को भी हटा दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था। वैसे हम जुडिशरी के बारे में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बताता है कि पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है, और इस तरीके से पॉलिटिकल अपोजिशन को हरास करना, पूरे मीडिया को अपने अंडर कवर रखना, जुडिशरी को हरास करना, ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को निश्चित लिमिटेड कर देना, तो ये सब चीज़ें अनडेमोक्रेटिक हैं। हम इसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. A democratic government cannot be whatever it likes. Simply because it has won an election, it has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to be through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibility assigned by the Constitution and the law. Each of these is accountable and not only to the people but also to the other independent officials. We shall read more about this in chapter 5. इसी प्रकार कुछ और टर्म एंड कंडीशंस हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के लिए तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं करनी चाहिए कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर पर तरीकों का पालन करना चाहिए। खास तौर से उसे जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कुछ गारंटी देनी चाहिए, और
जो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो विचार विमर्श होता है, जो सोच समझ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के दी जाती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो हर एक बड़े फैसले के बाद से पहले विचार विमर्श करना चाहिए। हर एक ऑफिशियल को उसके उससे जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी इनकी जवाबदारी होती है। और ये सब बात हम पाँचवें चैप्टर में पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। Both these aspects give us the 4th and final features of democracy। और हमें इसके तहत, इस स्टोरी के तहत हमें 5th फीचर मिलता है अपनी डेमोक्रेसी का। फीचर है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों को और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम कर सकती है। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा कानून के अंदर रहकर ही काम करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो संविधान बनाया है, उसके तहत ही, और नागरिक के अधिकार जो है उसके तहत ही उसे काम करना होगा। अगर उसने नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया तो वो एक अनडेमोक्रेटिक सरकार कहलाएगी, वो डेमोक्रेटिक सरकार की लिस्ट में से बाहर हो जाएगी। Summary definition. Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने ये देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसा रूप है जिसमें हम लीडर्स का चुनाव स्वयं करते हैं, यानी कि लोग स्वयं चुनाव करते हैं। हम सब लोग हैं इस कंट्री के और हम ही अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं। इसमें हमने देखा कि कई सारी केसेस में डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं थी, जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी। नाउ वी अंडरस्टैंड इट। सम statements about democracy. Rulers elected by the people take all the major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on the equal basis. The exercise of the choice leads in a government limited by basic rules of constitution, citizen rights. लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए एक अवसर होते हैं और विकल्प उपलब्ध कराते हैं, एक ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं जिससे हम जो प्रेजेंट रूलर है उसको बदल सके। और ये जो इलेक्शन होते हैं इनके अंदर सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबको ही होना चाहिए। कोई जो एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के तहत होना चाहिए। और संविधान द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तय कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करना चाहिए सरकार को। जो चुनाव में सरकार बनेगी उसे इसी के तहत काम करना होगा। वाई डेमोक्रेसी? अब लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र क्यों जरूरी है? लोकतंत्र जरूरी इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारे पास इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हमें तानाशाही रवैया देखने को नहीं मिलता है, ना कोई पार्टी किसी पार्टी को प्रभावित करती है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी आवाज़ रखने का मौका मिलता है, हमें हमारे राइट्स मिलते हैं, हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, हमें बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार स्वयं होता है, हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता होती है। इसीलिए लोकतंत्र जरूरी है। हम बड़े से बड़ा काम इस लोकतंत्र की मदद से कर सकते हैं, इस डेमोक्रेसी की मदद से कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा
आगे ले जाने का काम करती है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के खिलाफ भी हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स जो हैं वो लगातार बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता पैदा होती है। यानी कि सरकार बदलती रहती है, तो एक सरकार अपने हिसाब से काम करती है, दूसरी सरकार अपने हिसाब से काम करती है, जिससे परेशानियां पैदा होती हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का सत्ता का खेल होता है। यहाँ मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती। लेकिन आज हमें डेमोक्रेसी के अंदर मोरालिटी भी देखने को मिलती है कई सारे केसेस में। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delays. Elected leaders do not know the best interest of people. It leads to bad decision. Democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. Ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों को चर्चा करनी पड़ती है, फैसलों में देरी होती है। चुने हुए नेताओं पे नेताओं को लोगों के हित का पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। डेमोक्रेसी में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सत्ता का दुरुपयोग होता है, यानी कि पावर का दुरुपयोग भी होता है कई बार। अब लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। China's famine of 1958-1916 was the worst recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in the famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet, India did not have a famine of the kind China had. Economists think that this was a result of different government policy in the two countries. The existence of democracy in India made the Indian government responded to food scarcity in a way that the Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent or democratic country. If China too had multilateral elections, opposition party, and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. A non-democratic governments may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of people who rule. If the rulers did not want to, they did not have to act accordingly to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. चाइना में 1958 से 68 के दौरान अकाल पड़ा। ये सबसे ज़्यादा बहुत बुरा अकाल था, बहुत भयावह था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए, यानी कि डेड हो गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का यानी कि इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों का अंतर के कारण हुआ। भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसे करने की ज़रूरत चाइना की गवर्नमेंट ने महसूस नहीं की। इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश में भी अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है अभी तक। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, यानी कि वहाँ पर अगर बहुत सारी पार्टीज होती और विपक्षी दल होते और सरकार की आलोचना कर सकते और मीडिया स्वतंत्र होती, तो शायद इतने सारे लोग भूखे नहीं मरते। ये एक उदाहरण है लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताने का, डेमोक्रेसी को सर्वश्रेष्ठ बताने का। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप व्यवहार करने के मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी अन्य गवर्नमेंट से बेहतर है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर।
अगर लीडर्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर डेमोक्रेसी में यह ज़रूरी है कि जो रूलर है वो आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दे, वो तुरंत ध्यान दे। तो डेमोक्रेटिक रूल ज़्यादा अच्छा है अनडेमोक्रेटिक से, क्योंकि यह ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है गवर्नमेंट का।